Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, combustion and fuel. Warm-up exercise. Raja and Rani are celebrating Diwali. They are lighting candles and diyas. But they want to know what materials actually burn when they light candles and diyas. Does it produce heat and light on burning? Does it produce flame? Can you help Raja and Rani? Combustion. Any material that provides heat energy is called a fuel, but for a fuel to produce energy, it is essential that it should burn. The burning of a fuel to produce energy in the form of heat and light is called combustion. देखिए कोई भी मटेरियल जो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम फ्यूल कहते हैं. बट अगर कोई फ्यूल आपको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बर्न करे. तो जो बर्निंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कंबशन. ड्यूरिंग कंबशन अ फ्यूल मे बर्न completely or incompletely in the presence of oxygenated air. In other words, combustion is an oxidative process. However, the presence of oxygen is not a must for oxidation to occur. This combustion requires the presence of a combustible substance, a supporter of combustion, that is oxygen, and the appropriate temperature called ignition temperature. तो देखिए किसी भी combustion के लिए इन तीन रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है. यानी कि कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, सपोर्टर होना चाहिए कंबशन का, ऑक्सीजन, और इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. एक्टिविटी 1. Fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way so that air can enter the chimney. Observe what happens to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Again, observe the flame. Then put a glass plate over the chimney, observe the flame again. The candle burns freely in because air enters the chimney from below. The candle flame starts flickering and produces a smoke in because air does not enter the chimney from below. आपको एक लाइटेड कैंडल फिक्स करनी है टेबल पे. एक ग्लास चिमनी आप रख देंगे कैंडल के ऊपर, और फिर आप उसको रखेंगे कुछ वुडन ब्लॉक्स के ऊपर कि इस तरह से कि जो एयर है वो चिमनी से एंटर कर सके. अब आप देखेंगे फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे. अब आप ब्लॉक्स को हटा देंगे और चिमनी को आप रखेंगे टेबल पे. फिर से आपने फ्लेम को ऑब्जर्व करना है. फिर आपने ग्लास प्लेट को रखना है चिमनी के ऊपर और फिर फ्लेम को फिर से ऑब्जर्व करना है. तो देखिए ए केस में आपका क्या होगा कि जो कैंडल है वो फ्रीली बर्न करेगी क्योंकि एयर जो है वो चिमनी से एंटर कर रही है फ्रॉम बिलो. एंड बी पार्ट में क्या होगा कि कैंडल फ्लेम जो है फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद स्मोक प्रोड्यूस करेगा क्योंकि अब एयर जो है वो चिमनी से नीचे आपके एंटर नहीं कर पा रही है. सी, ये आपको दिया गया है. देखिए द कैंडल does not burn in C because air is not available. This shows that air is necessary for burning. और इस केस में क्या है कि उसको तो एयर मिल ही नहीं पा रही है तो वो तो बर्न ही नहीं करेगा. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire and wood or coal? देखिए आपका जो पीस ऑफ पेपर है क्या वो अपने आप से जलेगा, है ना, और जैसे ही आप उसके पास मैचेस स्टिक लेके जाएंगे क्या वो जलेगा. अब आप मैचेस स्टिक, जलती हुई मैचेस स्टिक आप वुड के पास लेके जाएंगे तो क्या वो जलना स्टार्ट होगा. और अगर आप जैसे कि कैरोसिन ऑयल आप जैसे ही डालेंगे वुड में तो क्या उसमें, या कोल में, तो क्या उसमें आग लग जाएगी. Have you heard of forest fires? A forest fire is a natural disaster consisting of a fire which destroys a forested area and can be a great danger to people who live in forests as well as wildlife. Forest fires are generally started by lightning, but also by human negligence or arson and can burn thousands of square kilometers. Forest fire आपका एक natural disaster है जिससे कि पूरा जो जंगल का एरिया है वो आपका उसमें आग लग जाती है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो जनरली ये लाइटनिंग की वजह से होता है, बट कई बार ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से भी हो जाता है. Do this experience tell you that different substances catch fire at different temperatures? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. तो देखिए ये जो सब्सटेंस है आपके इन अलग अलग टेम्परेचर पे जलते हैं, तो जो वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर. Ignition temperature. The minimum temperature at which a substance catches fire and burns is called its ignition temperature.
A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. Different substances have different ignition temperatures. Example, the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. Substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Example, petrol, alcohol, LPG, CNG, etc. तो देखिए वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। और कोई भी जो सब्सटेंस है वो आग को फायर कैच नहीं करेगा अगर उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जा रहा है, ओके। जैसे कि आपका देखिए जो इग्निशन टेम्परेचर था कैरोसिन का, वो वुड के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत कम होता है। तो कुछ सब्सटेंस होता है जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, all these are inflammable substances. Types of combustions. Combustions can be of 4 types. They are as follows. Spontaneous combustion. Spontaneous combustion is the combustion that occurs at room temperature on its own. The substances having an ignition temperature less than the atmospheric temperature show spontaneous combustion. For example, yellow phosphorus has a very low ignition temperature. As soon as it comes in contact with air, it catches fire. Therefore, it is kept in water. देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही ये कंबशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि आपका येलो फॉस्फोरस है, इसका बहुत ही ज़्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर, और जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है इसमें अपने आप से आग लग जाती है, तो इसीलिए इसको वाटर में रखा जाता है। रैपिड कंबशन, इट इज़ अ कंबशन दैट अकर्स रैपिडली इवॉल्विंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स लाइक LPG, कैरोसिन ऑयल, कोल एक्सेट्रा शो रैपिड कंबशन। इस कंबशन में क्या होता है कि आपका जो रैपिडली इसमें आपका हीट एंड लाइट आपका इवॉल्व होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि LPG की बात करें या आपका कैरोसिन है, ऑयल है या फिर कोल, ये रैपिड कंबशन शो करते हैं। Explosion, it is a type of combustion that occurs at an extremely rapid rate with evolution of heat and light and a loud sound. The crackers that we burn on Diwali are an example of explosion. The hydrogen gas, when burnt, is also explosive in nature. एक्सप्लोजन में क्या होता है कि कंबशन बहुत ही रैपिड रेट से होता है, इसमें आपका हीट एंड लाइट का इवोल्यूशन तो होता ही है, साथ ही साथ आपका लाउड साउंड भी इवॉल्व होती है। जैसे दिवाली के टाइम पे आप लोग पटाखे जलाते हैं ना, क्रैकर्स को जलाते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का। And the next one is slow combustion. A combustion reaction in which no light is produced and the temperature of the substance remains almost unchanged is called slow combustion. Rusting of iron and digestion of food are oxidation reactions that may be classified as slow combustion. In both these reaction, combustion occurs without a substance catching fire. स्लो कंबशन में क्या होता है कि आपकी कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती और जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, राइट। जैसे कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है या जो फूड का डाइजेशन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है जिन्हें हम स्लो कंबशन कहते हैं। और दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है, कंबशन होता है बिना, इसमें देखिए कोई भी सब्सटेंस जो है वो फायर को तो कैच नहीं कर रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्लो कंबशन। फ्लेम, all inflammable substances are burnt with a flame. The color of the flame may vary for different substances. All flames have a luminous and non-luminous zone. The outermost zones are the non-luminous zone. It is the hottest zone and is the invisible zone. अब जितने भी आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं वो एक फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। जो कलर होता है फ्लेम का वो वेरी करता है डिफरेंट सब्सटेंस के लिए। तो हर फ्लेम का एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, और आउटर मोस्ट जोन जो होते हैं आपके नॉन ल्यूमिनस जोन होते हैं, ये हॉटेस्ट जोन होते हैं और इनविजिबल जोन होता है। Outermost. In the outermost zone, complete combustion of the fuel takes place and the color of the flame is blue and is the hottest part of the flame. It is a non-luminous part of the flame. जो आपका outermost zone होता है यहाँ पे complete combustion होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे color होता है आपका blue and ये hottest part होता है आपके flame का। Middle zone. In the middle zone, partial combustion of the fuels takes place and the color of the flame is yellow and is moderately hot part of the flame. It is a luminous part of the flame. अब मिडिल जोन में आपका पार्शियल कंबशन होता है और जो कलर होता है फ्लेम का वो आपका येलो होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है। इनर जोन, इन द इनर जोन देयर आर अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ द फ्यूल एंड द कलर इज ब्लैक एंड इज लीस्ट हॉट पार्ट। इनर जोन जो है आपका, इसमें आपके अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं फ्यूल के, एंड कलर आपका होता है ब्लैक और ये लीस्ट हॉट पार्ट है। Type of fuels. There are many different types of fuels that exist in our surroundings. Fuels have been classified into 3 types based on some common characteristics and their physical state of existing. Solid fuels, example wood, coal, charcoal. Liquid fuels, example kerosene, petrol, diesel, etc. Gaseous fuels, example CNG, LPG, biogas, hydrogen, etc. तो देखिए आपके जो fuels हैं वो solid, liquid and gaseous तीनों हो सकते हैं। Methods of controlling fire by using water.
Water is the most common fire extinguisher. It can be used only when materials like wood, paper, etc. are on fire. अच्छा देखिए फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. नंबर वन मेथड है अगर हम वाटर का यूज़ करें, बट वाटर का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जैसे कि अगर आग आपकी वुड या पेपर पे लगी हो. वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर बिकॉज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन हार्म दोज ट्राइंग टू पुट आउट द फायर. वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. अब देखिए अगर आपकी जो फायर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से लगी है तो आप जो है वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो इसीलिए जो आग को बुझा रहा है वो उसको हार्म कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. इसके अलावा वाटर को अगर कोई आग आपकी पेट्रोल या फायर की वजह से लगी है तो उसमें भी हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑयल होते हैं और ये वाटर से लाइटर होते हैं और वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं और इसीलिए दे कंटिन्यू टू बर्न बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is the best fire extinguisher to put out fire caused by inflammable materials like oil and petrol and electrical equipments. Carbon dioxide is heavier than air and covers a fire and cuts off the supply of oxygen and puts out the fire. Carbon dioxide is stored at high pressure as liquid in cylinders. Chemicals like sodium bicarbonate, baking soda, potassium bicarbonate produce carbon dioxide near the fire. Carbon dioxide आपका best fire extinguisher होता है. ओके जैसे कि आपका ऑयल या पेट्रोल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई आग लग जाती है तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है. ये एयर से हैवियर होता है और इसीलिए फायर को कवर कर देता है जिससे कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है और फिर आग जो है आपकी बुझ जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर्स में आपका स्टोर किया जाता है एज लिक्विड अंडर हाई प्रेशर. तो इसमें आपके होते हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं नियर द फायर. Soda acid fire extinguisher. It uses a concentrated solution of sodium hydrogen carbonate in a small cylinder with a glass bottle filled with सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें आपका क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक छोटे से सिलेंडर में और इसमें आपकी एक ग्लास बॉटल होती है जो सल्फ्यूरिक एसिड से फिल्ड होती है. व्हेन फायर ब्रेक्स आउट द सिलेंडर इज हिट टू अ हार्ड सरफेस टू ब्रेक द बॉटल. और जैसे ही अगर फ्राई ब्रेकआउट होती है तो सिलेंडर को हिट किया जाता है किसी सरफेस पे जिससे कि जो बॉटल है टूट जाती है. वंस द बॉटल ब्रेक्स द एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड which being a non-supporter of combustion helps to extinguish the fire and water with its cooling effect helps to bring down the temperature below the ignition temperature. अब जैसे एक बॉटल आपकी ब्रेक होगी एसिड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपका इवॉल्व करेगा जो कि आपका नॉन सपोर्टर होता है कंबशन और इसके बाद आपका क्या होगा कि जो आग है वो बुझ जाएगी. सो हियर इज द इक्वेशन. देखिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपका क्या बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. Foam type fire extinguisher. It is like soda acid fire extinguisher except that it contains aluminium sulfate instead of sulfuric acid in the glass bottle and also has a substance called saponin mixed with sodium hydrogen carbonate. The saponin helps to produce the foam of carbon dioxide. It is used for extinguishing the oil fires. अच्छा ये भी आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह होता है एक्सेप्ट इसमें आपका एल्यूमिनियम सल्फेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड की जगह ग्लास बॉटल में और इसमें एक सब्सटेंस भी होता है जिसे कहते हैं सेपोरिन जो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपका मिक्सड होता है. फिर जो सेपोरिन है वो क्या करता है वो फोम प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड के जिससे कि आपका फायर आपकी एक्सटिंग्विश हो जाती है ऑयल फायर्स स्पेशली. सो हियर इज द इक्वेशन. कार्बन टेट्राक्लोराइड fire extinguisher. The carbon tetrachloride produced from methane is a non-supporter of combustion. It is used to extinguish electrical fires, but one needs to be careful when using it because its usage produces a toxic gas. Hence, one should always keep one's nose and mouth covered with a wet cloth while using it as a precautionary measure. आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है यानी CCl4 ये आपका मीथेन से प्रोड्यूस होता है जो कि नॉन सपोर्टर होता है कंबशन का. तो ये इलेक्ट्रिक फायर्स को एक्सटिंग्विश करता है बट इसको यूज़ करते टाइम केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि इसमें आपके टॉक्सिक गैसेस का यूसेज होता है तो इसीलिए माउथ और नोज़ को कवर करके रखना चाहिए वेट क्लोथ से. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट और बर्निंग फ्यूल. Fuels like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles which cause respiratory disease like asthma. Incomplete combustion of fuels release carbon monoxide gas which is a very poisonous gas which can cause death.
अच्छा, इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपके जैसे कि आपके वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज होने का प्रॉब्लम रहता है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी फ्यूल का, तो एक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। Burning of most fuels release carbon dioxide gas, which causes rise in the temperature of the atmosphere. This is called global warming. It causes melting of polar ice, rise in sea level, and flooding of coastal areas. Burning of coal and petroleum releases oxides of sulfur and nitrogen, which dissolve in rainwater and form acid rain. It is harmful for crops, soil, and damages buildings. तो अगर देखिए आपके ज़्यादातर फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, जिससे इसकी सी लेवल बढ़ रहा है। कोल एंड पेट्रोलियम जब बर्न होते हैं तो ऑक्साइड्स उसमें रिलीज होते हैं, सल्फर के और नाइट्रोजन, जो कि रेन वाटर के साथ डिजोल्व होकर एसिड रेन बनाते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए, सॉइल के लिए और बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। Notes for the chapter. Combustion is the process of burning a fuel in the presence of oxygenated air to produce heat and light. Fuels on the basis of their physical state have been classified as solid, liquid and gaseous. LPG, CNG, water gas, producer gas and biogas are gaseous fuels. Fire extinguishers are devices used to extinguish fire that breaks out accidentally. The substances which burn in air are called combustible. Ignition temperature is the lowest temperature at which a combustible substance catches fire. Water is commonly used to control fires. There are various types of combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion, explosion, etc. Unburned carbon particles in air are dangerous pollutant causing respiratory problems. Increased percentage of carbon dioxide in air has been linked to global warming. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।